Today we are going to discuss specific heat capacity, what and how the specific heat capacity for different gases can be calculated, and what is the relationship between the specific heat capacities at constant pressure and constant volume with the ideal gas constant. Now, in order to start that, let's first understand what is specific heat capacity. So what for that let's consider we have an object, and the object has some, definitely whenever we are heating that object or the body, the temperature of the body is increasing. in order to in order to calculate the amount of heat absorbed by the object to rise its temperature, let's assume that the rise in temperature is dT and the amount of heat absorbed by the object or the body is dQ. Let's say that as it is observed experimentally, the amount of heat is absorbed, more is the rise in temperature. So we can say that dQ, that is the amount of heat absorbed, is directly proportional to dt, that is the rise in the temperature of that object or the body under observation. And it also depends upon another parameter, the how much massive the object is. The more massive object, the more amount of heat is required to rise the temperature of that object. So we can conclude from the experimentation that dq is directly proportional to mass of the object m, and dq is directly proportional to t. Now, comparing both the observations, experimental observations, we we have come to the conclusion that dq is directly proportional to mdt. Now, changing the sign of equality into proportionality into equality, we will be using a constant for the proportionality, and that constant of proportionality is c. C basically over here is representing the specific heat capacity of any specific medium, or we can say in simple words specific heat. In order to calculate specific heat, let's rearrange the this equation, last equation, and we will rearrange and simplify the equation for C. And for the value of C, that is specific heat capacity, the value of C is dq over mdt. अच्छा जी, अब इसको समझने के लिए कि व्हाट इज़ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेट्स से कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट का मास है 1 किलोग्राम. वी आर सेइंग कि हमारे पास m एंड दैट इज़ इक्वल टू 1. सिमिलरली द राइज इन टेम्परेचर इज़ यानी कि dt, और इसकी वैल्यू भी हमने कहा कि 1 केल्विन है. मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज़ 1 kg, और जो अमाउंट ऑफ टेम्परेचर राइज है दैट इज़ 1 केल्विन. तो अब यहाँ पर हमें बेसिकली C की अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी, C को अगर डिफ़ाइन करना चाहते हैं, तो C बेसिकली वो हीट है, वो अमाउंट ऑफ हीट है. बेसिक C इज़ दैट अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg mass of an object through 1 Kelvin. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, लेट्स से पहले आपके पास 2 केल्विन्स था, और आफ्टर सम टाइम आपने क्या किया, उसको हीट प्रोवाइड की है और उसका टेम्परेचर जो है वो अब 3 केल्विन्स हो गया है. तो जो अमाउंट ऑफ हीट हमारे सब ऑब्जेक्ट ने एब्जॉर्ब की है, दैट अमाउंट ऑफ हीट इज़ नोन एज स्पेसिफिक हीट. और स्पेसिफिक हीट का अगर हम यूनिट लिखना चाहते हैं तो वो भी दैट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव, फ्रॉम दिस इक्वेशन. dq बेसिकली अमाउंट ऑफ इट्स एनर्जी, और हीट एनर्जी है तो उसको हम जाउल्स में मैयर करेंगे. m इज़ द मास, और मास को अभी हमने कहा कि हम केजीज़ के अंदर मैयर कर रहे हैं. इसी के साथ साथ dt, दैट इज़ योर टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, और इसका यूनिट हमारे पास केल्विन होता है. तो बेसिकली हमारे पास ऐसा यूनिट फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ द सिस्टम अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो हमारे पास वो उसकी वैल्यू आएगी J per kg per Kelvin. Now,
मोलर स्पेसिफिक हीट पर आते हैं। अच्छा जी, अब बेसिकली अगर आपके पास स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मोलर स्पेसिफिक हीट में कुछ डिफरेंस नहीं है। दैट इज़ क्वाइट सिंपल एंड सिमिलर टू द स्पेसिफिक हीट। कि अगर आपके पास, अब प्रीवियसली हमने क्या कहा था कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट को हम जिसकी हीट कैपेसिटी मेजर कर रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट, उसका मैस हमारे पास 1 kg था। लेकिन अगर हम अपने ऑब्जेक्ट का मैस कंसिडर कर लेते हैं 1 मोल, तो अब जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगी हमारे सिस्टम से हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर, दैट अमाउंट ऑफ हीट विल प्रोवाइड अस मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर दैट स्पेसिफिक सब्सटेंस। और हमारा जो फॉर्मूला है, प्रीवियसली यहाँ पर हमने C इज इक्वल टू dQ/m/dt लिखा था। यहाँ पर m की जगह, m बेसिकली वॉज रिप्रेजेंटिंग द मैस, तो अब हमारे पास मैस जो m है वो रिप्लेस हो जाएगा n के साथ, एंड n इज़ द नंबर ऑफ मोल्स। इट इज़ फॉर 1 मोल आपके पास n की वैल्यू 1 आ जाएगी, और dt की वैल्यू आपके पास 1 केल्विन हो सकती है, और dq की वैल्यू जो है दैट इज़ द बेसिकली रिक्वायर्ड वैल्यू, जो अगर आपको नोन हो तो आप c की वैल्यू, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर एनी सब्सटेंस, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसका जो यूनिट, SI यूनिट है, वो प्रीवियस से थोड़ा सा चेंज होगा। प्रीवियस में हमारे पास मैस का यूनिट हमने केजीज यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पर हम मैस के लिए यूनिट जो यूज़ कर रहे हैं वो मोल कर रहे हैं। तो जो SI यूनिट है आपके पास, दैट इज़ जूल पर मोल केल्विन। नाउ हमारे पास नेक्स्ट जो है दैट इज़ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा जी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हम किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी सिस्टम का वॉल्यूम किस तरह से कांस्टेंट रख सकते हैं। फॉर दैट हमने ये कहा था कि इफ़ वी कैन मेक द piston of the cylinder immovable, or if we fix the piston of the cylinder, तो हमारे पास क्या होता है, हमारा वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम चेंज नहीं होता। जो वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम एट द बिगिनिंग था, वही वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम एट द एंड ऑफ द प्रोसेस होता है। तो अब हमने क्या किया, हमने लिया एक सब्सटेंस, उसको फिल किया किसी सिलेंडर के अंदर। नाउ अब हमने क्या किया, वी आर एज्यूमिंग दैट कि हमारे पास एक अदद सिलेंडर है, उसके अंदर हमने गैस फिल की, और कोई भी वर्किंग सब्सटेंस हमने फिल किया, और वर्किंग सब्सटेंस फिल करने के बाद हमने उस सिलेंडर का पिस्टन जो है उसको फिक्स कर दिया। नाउ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर विल नॉट बी चेंज्ड, वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस विल नॉट बी चेंज्ड। और अगर वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस चेंज नहीं होता, और फिर भी हम क्या करते हैं, फिर भी हम अपने सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं। अब सब्सटेंस का टेम्परेचर, हमारे पास सब्सटेंस क्या है, बेसिकली वी कैन से कि हमने गैस ली हुई है और 1 मोल ऑफ गैस लिया है, उस सिलेंडर के अंदर फिल किया है, पिस्टन को हमने फिक्स कर दिया है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, हम अपने उस सिलेंडर को अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र करते हैं, और जो अमाउंट ऑफ हीट हमारे टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम को 1 केल्विन तक अगर बढ़ा देती है, तो ऐसी अमाउंट ऑफ हीट हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कोई चेंज नहीं आएगा आपके पास। जो मोलर स्पेसिफिक हीट से कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा इसके अंदर, लेकिन सिंपल क्या चेंज आ जाएगा, एज वी आर restricting our system to keep the वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट, तो यहाँ पर हमारे साथ C के साथ V आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो चेंज इन अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम है, उसके साथ भी हमारे पास V आ जाएगा, तो ये dQV आ जाएगा आपके पास। जो SI यूनिट है हमारा वो चेंज नहीं होगा, SI यूनिट विल रिमेन द सेम। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है जी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर हम अपने सिस्टम का प्रेशर चेंज नहीं करते हैं, तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो मोलर स्पेसिफिक हीट आएगी, दैट मोलर स्पेसिफिक हीट विल बी नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब हम अपने सिस्टम का, बेसिकली वही सिस्टम है हमारे पास, एक सिलेंडर, और सिलेंडर के अंदर हमने गैस फिल की है, क्या 1 मोल ऑफ गैस फिल किया है, और 1 मोल ऑफ गैस को हमने रखा किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पे रखा है। हमने सिस्टम को इस तरह से एडजस्ट किया है कि हमारे सिस्टम का प्रेशर चेंज नहीं होगा। व्हेन वी आर गोइंग टू हीट द सिस्टम। अब हम अपने सिस्टम को हीट करेंगे, और हीट करने के बाद लेट्स से कि हमारे सिस्टम का टेम्परेचर जो है वो चेंज हो गया बाय 1 केल्विन।
यानी अगर हमारे पास पहले 2 केल्विन्स था टेम्परेचर, तो अब टेम्परेचर जो है वो 3 केल्विन्स हो गया। ऐसी सूरत में जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड है हमारे सिस्टम के अंदर, दैट विल बी DQP। P इज़ रिप्रेजेंटिंग द कंडीशन कि हमारे पास यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर है, और क्रॉसपॉन्डिंगली इसके लिए जो हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू आएगी, दैट इज़ CP। इसके अंदर हमारे पास और कोई चेंज नहीं आएगा, सेम रहेगा फॉर्मूला हमारे पास, और इसका यूनिट भी हमारे पास सेम रहेगा।